Good morning, students. Now, after vacation, now your classes again started, and I hope your holidays was good. So, before holidays, we have done your exercise 14.2, and I give you homework holiday assignment from exercise 14.2. One definition, that is a corresponding angle, and again we will discuss that thing. And exercise 14.2 also we are going to start. Before starting the 14.2 exercise, I will tell you some definitions here are given on your book before the exercise 14.2, page number 14.12 here. First is a transversal. What is transversal? Transversal is a line intersecting two or more given lines in a plane at different point is called a transversal line. ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਜਦੋਂ ਦੋ ਲਾਈਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗਿਵਨਸ ਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਟਰਾਂਸਵਰਸਲ. ਸਪੋਜ਼ ਆਈ ਹੈਵ ਅ ਟੂ ਲਾਈਨਸ ਲਾਈਕ ਇਜ਼ ਦਿਸ. ਗਿਵ ਨੇਮ L and M. Got it? And this is intersecting. Different point is here. Name it here. P. It's here. ये line cut करिए and give name to this one. T. ठीक. It means T is a transversal line. जो ਲਾਈਨ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਜਦੋਂ when a line intersect the two lines at different points, that is a transversal. जब एक लाइन प्लेन में दो लाइंस गिवन दी हो उनको जब इंटरसेक्ट करती है, कट करती है डिफरेंट पॉइंट्स पर, तो हम उसको क्या, उस लाइन को क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन. Angle made by transversal with two line. And when a transversal line intersect the two parallel lines, these are two parallel lines, got it? Intersect the two parallel lines at different points, when how many angles will form there? Then this one transversal will form a 8 angles. Name it here. 1. Here is angle 2. Here. One is here. One is here. One is here. So give name to these angles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Does not matter, beta. On your book maybe opposite to me angles are given, and I write it like is this. You can take in any manner. Got it? So look at here. Yes, ये जो अब इसमें L और M टू पैरेलल लाइंस हैं, और इस N लाइन ने क्या किया? इसको कट किया दो डिफरेंट पॉइंट पे, P और Q पे. इट मीन्स N क्या है यहाँ पे? ट्रांसवर्सल. ठीक है, N क्या है? ट्रांसवर्सल है. और कितने एंगल फॉर्म हुए हैं यहाँ पे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. How many? 8 angles are formed. And these 8 angles. Now look, next definitions are given. Got it? When the transversal line intersect the two parallel lines, then how many angle will form there? 8 angles will form. ठीक है. Next is given exterior angle and interior angle. Exterior, the angle whose arm do not include the line segment PQ are called exterior. ठीक है. And the angles whose arm include, हमारे पास यहाँ पे कौन सी डेफिनेशन है? एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल. यो जो इनके बीच एंगल बनते हैं, इन्हीं में से कुछ एक्सटीरियर होते हैं, कुछ इंटीरियर होते हैं. जो तो दो लाइंस के L और M जो पैरेलल लाइंस के अंदर एंगल्स हैं, वो क्या हैं? इंटीरियर. और जो बाहर हैं, आउटसाइड पे बने हैं, वो क्या है? एक्सटीरियर. अब देखो यहाँ पे 1, 2, 7 एंड 8 आर एक्सटीरियर. ये बाहर बन रहे हैं ना, पैरेलल लाइंस के अंदर नहीं, बाहर बन रहे हैं, तो ये कौन से हैं? एक्सटीरियर. अब ये दोनों लाइंस के अंदर बन रहे हैं, 3, 4, 5, 6 क्या हो गए हमारे पास? इंटीरियर. ओके, ये अकॉर्डिंग टू योर बुक दीज आर एक्सटीरियर और इंटीरियर, एंड अकॉर्डिंग टू माई. नाउ हेयर इज 1, ये 1 और 2 बाहर हैं. 7, 1, 2, 7, 8 आर एक्सटीरियर. ठीक है. और 3, 4, 5, 6
are interior. Got it? Next, corresponding angle. This one we have done earlier. So I told you about the corresponding clearly I told you about the corresponding angles. So I know you know very well about it. So again I am going to repeat. हमारे पास दो पैरेलल लाइंस है. ये लाइन एक ट्रांसवर्सल लाइन है. नेम दे दो इसको एन, नेम दे दिया इसको एल और एम दे दिया. जब ये ट्रांसवर्सल में यहाँ कितने एंगल्स बनेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8. अब इसमें कॉरस्पॉन्डिंग कौन से हैं? एंगल 1 एंड एंगल 5. एक पेयर ये वाला है. एक कौन सा है? 4 एंड 8. एक 2 एंड 6. एक 3 एंड 7. कैसे कॉरस्पॉन्डिंग होते हैं? A pair of angle in which one arm of both the angle is on the same side of the transversal and their other arms are directed in the same sense. वो वाले दो एंगल्स क्या होता है? पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होता है जिनका एक एक आर्म जो है सेम साइड ट्रांसवर्सल एक को साइड पे हो, एक ही साइड पे हो, और दूसरी जो है वो सेम सेंस में मूव कर रही हो, डायरेक्टेड इन द सेम सेंस. अब देखो हमारे पास ये वाला एंगल, एंगल 1 एंड एंगल 5. ठीक है, 1 की ये वाली आर्म और 5 की ये वाली आर्म, ये ट्रांसवर्सल की इसी साइड पे. अगर 1 की इस साइड पे है तो एंगल 5 की एक आर्म भी तो उसी साइड पे है. अगर 1 की ये आर्म ऊपर को मूव कर रही है तो इसकी 5 की भी तो ऊपर को मूव कर रही है. 1 आर्म डायरेक्टेड इन द सेम सेंस एंड 1 lying in the same side of the transversal. It means angle 1 and angle 5 is a pair of corresponding. Similarly 4 और 8, अगर 4 की एक आर्म डायरेक्टेड इन द डाउनवर्ड तो 8 की भी तो डाउनवर्ड को जा रही है और ये ट्रांसवर्सल की एक साइड पे है. सिमिलरली इसमें देखो ये ऊपर को जा रही है और एंगल 6 की ये सेम है और अदर्स आर्म आर डायरेक्ट लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल. देन 3 and 7. These pairs are corresponding angle. Got it beta? These are corresponding angles. Next, कौन सी डेफिनेशन से आ गई है हमारे पास? अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल. फर्स्ट ऑफ ऑल इसको छोड़ के आपको इंटीरियर पता है कि दो लाइंस के बीच वाले एंगल्स इंटीरियर हैं और दो पैरेलल लाइंस के बाहर जो एंगल है वो क्या है? एक्सटीरियर है. अल्टरनेट कैसे होते हैं? अल्टरनेट मतलब मीन्स ऑपोजिट टू ईच अदर. पेयर ऑफ एंगल्स ऑपोजिट टू ईच अदर. वो पेयर जिसमें दोनों एंगल एक दूसरे, अल्टरनेट का हमने पिछले एक्सरसाइज में किया था ना, अल्टरनेट एंगल्स. अल्टरनेट मीन्स ऑपोजिट. ये देख सिंपल वहाँ पे किया था. जेड शेप में बनने वाले ये एक दूसरे को ऑपोजिट है. इट मीन्स नेम दे दो, एंगल 1 एंड एंगल 2 आर अल्टरनेट. सेम यहाँ पे भी हो जाएगा वही. कौन? अब इंटीरियर तो पता ही है, आगे अल्टरनेट साइन लग गया. इट मीन्स ऑपोजिट इंटीरियर. पेयर ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर इज कॉल्ड अ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. इट मीन्स एंगल 3 के ऑपोजिट कौन सा है? एंगल 5. ये एक पेयर हो गया 3 and 5. 4 के ऑपोजिट 6. एंगल 4 एंड एंगल 6 फॉर्म अ पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. और एक्सटीरियर के अब 2 के ऑपोजिट यहाँ पे 8 है और 2 और 8 इज़ अ पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल and angle 1 and angle 7 form a pair of alternate exterior angles. One thing is more, in the next page 14.15, on the next page here we have three properties are given. According to three properties, first is here pair of alternate interior exterior. अब जो पेयर होता है अल्टरनेट एक्सटीरियर और इंटीरियर का, अल्टरनेट इंटीरियर यहाँ पे एंगल 3 एंड एंगल 5 था और एंगल 4. इट मीन्स ये पेयर्स जो हैं आपस में इक्वल भी हैं. इट मीन्स एंगल 3 किसके इक्वल है? एंगल 5 के. एंगल 4 किसके इक्वल है? एंगल 6 के. गॉट इट बेटा? अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल. नेक्स्ट, पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. हियर वी हैव दीज 4 पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. फर्स्ट पेयर इज एंगल 1 एंड एंगल 5 एंड दिस वन पेयर इज इक्वल टू ईच अदर ऑल्सो. अगर ये पेयर है कॉरस्पॉन्डिंग है तो ये आपस में इक्वल भी हैं. तो एंगल 4 किसके इक्वल है? एंगल 8 के.
एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल 6 के। अगर हमें 1 पता है तो 5 भी उतना ही है। एंगल 7 किसके इक्वल है, एंगल 3 के। पेयर्स आर इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। थर्ड में कह रहे हैं द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। ये हमारे पास ऐसे एंगल बनते हैं ना वहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इनमें इंटीरियर कौन से हैं, 3 4 5 6 आर इंटीरियर, 1 2 7 8। अब ट्रांसवर्सल की इस साइड पे इंटीरियर कौन कौन से हैं, एंगल 4 एंड एंगल 5, ठीक है। ट्रांसवर्सल की एक साइड पे इंटीरियर एंगल कौन से हैं, एंगल 4 एंड, और दूसरी साइड पे एंगल 3 एंड एंगल 6। कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू द थर्ड प्रॉपर्टी द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज इक्वल टू 180 डिग्री। इनका सम किसके इक्वल होता है, जो ट्रांसवर्सल की एक साइड पे, दोनों ऑपोजिट साइड्स पे नहीं, एक ही साइड पे हों दोनों इंटीरियर, तो उन दोनों का सम किसके होता है 180 की। और सिमिलरली एक्सटीरियर के लिए है। अब ट्रांसवर्सल की एक साइड पे ही एक्सटीरियर है। अब ट्रांसवर्सल की इस साइड पे एक्सटीरियर कौन कौन से हैं, एंगल 1 एंड एंगल 8। तो एंगल 1 प्लस एंगल 8 इनका सम किसके इक्वल है 180 डिग्री के। और दूसरी साइड पे कौन कौन से हैं एक्सटीरियर, एंगल 2 एंड एंगल 7, और इनका भी सम किसके इक्वल है 180 डिग्री। ये कंसेप्ट हम जब हम सम सॉल्व करेंगे ना तब हम यूज़ करेंगे इनको। गॉट इट बेटा। नाउ definition is done, and homework is first sum of exercise 14.2. It's your homework, so beta try to solve firstly, then I will discuss. Okay, thanks and have a great day.